Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 22nd of September. कल था Sunday. It was an off. इसलिए आज की वीडियो में we have 20 questions in the MCQ format, which are going to be extremely helpful for all your competitive exams. तो जल्दी से let's move on to question 1. Consider the following statements about गौरंगा लाल दास. गौरंगा लाल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. He is a 99 बैच IFS ऑफिसर. वह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं. He is currently joint secretary East Asia division in the MEA. वह वर्तमान में MEA में पूर्वी एशिया प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं. And third statement is he has been appointed as India's ambassador to South Korea in 2025. उन्हें 2025 में दक्षिण कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया है. उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? Which of the above statements are correct? You can always pause the video to read the statements again, and the right answer here is all the three statements are correct about Gauranga Lal Das. And ये न्यूज में क्यों चल रहे हैं? For this third statement, because he has been appointed as India's ambassador to South Korea in 2025. Moving on to question 2, who became the first female from Bihar to earn the Woman FIDE Master title in 2025. 2025 में महिला FIDE मास्टर का खिताब हासिल करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? FIDE जो है आपके चेस टूर्नामेंट्स होस्ट करता है. एंड फ्रॉम बिहार वी हैव द फर्स्ट फीमेल वुमन FIDE मास्टर. हर नेम इज मरियम फातिमा. Maryam Fatima from Bihar is the first woman FIDE Master 2025. Question number 3. Which country raised its climate target in 2025 to cut greenhouse gas emissions by 62% by 2035? किस देश ने 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 62% की कटौती करने के लिए 2025 में अपने जलवायु लक्ष्य को बढ़ाया है? The climate target has been increased, probably because they have already completed their earlier target early. तो अपना पहला सेट किया टारगेट क्योंकि वो अर्ली अचीव कर पाए हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने क्लाइमेट टारगेट्स को इंक्रीज कर दिया है. एंड द न्यू टारगेट्स आर टू कट ग्रीन हाउस एमिशंस बाय 62% by the year 2035. Moving on to question 4. Which Indian institute partnered with Vietnam National University in 2025 to work on AI smart cities and drone technology projects? किस भारतीय संस्थान ने 2025 में AI स्मार्ट शहरों और ड्रोन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर काम करने के लिए वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है? Which of these IITs have partnered with Vietnam National University? That is what the question asks. And the right answer is IIT Kanpur. Let's move to question 5. From which country did India recently receive its first Hilsa fish consignment? Hilsa fish consignment 2025 हाल ही में भारत को किस देश से 2025 में हिल्सा मछली की पहली खेप प्राप्त हुई है? The first consignment of Hilsa fish. Hilsa fish जो है आपका बहुत ही फेमस फिश स्पीशीज है फ्रॉम बंगाल. बंगाल में इट इज ईटन वेरी वाइडली एंड इसीलिए बांग्लादेश से हमने फर्स्ट कंसाइनमेंट इसका रिसीव किया है. मूविंग टू क्वेश्चन 6. व्हेन वाज यात्री सेवा दिवस 2025 ऑब्जर्व्ड एट एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया? भारत भर के हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑन विच ऑफ दीज डेट्स वाज यात्री सेवा दिवस 2025 observed? And the right answer is the 17th of September, मोदी जी का birthday. Let's move to question 7. In September 2025, the US Federal Reserve reduced its benchmark interest rate by how many basis points? सितंबर 2025 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर पर कितने आधार अंकों की कमी की? How many basis points have been reduced by the US Federal Bank? So the right answer is 25 basis points. So 25 basis points का मतलब होता है 0.25%. 0.25.
Moving to question 8, in September 2025, which new feature was launched by EPFO to enable faster provident fund settlements and real time account tracking? सितंबर 2025 में EPFO द्वारा तेजी से भविष्य निधि निपटान और वास्तविक समय खाता ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई थी? EPFO द्वारा यह सुविधा शुरू की गई है. The new feature by EPFO is the Passbook Lite. Passbook Lite will enable faster provident fund settlements as well as real-time account tracking. Moving on to question 9. Consider the following statements about India's Blue Ports initiative with FAO. FAO के साथ भारत की Blue Ports पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. Again, a statement question. 3 pilot harbors, वनकबरा, कराईकल एंड जखाऊ विल बी अपग्रेडेड अंडर द स्कीम. इस योजना के तहत 3 पायलट बंदरगाहों वनकबरा, कराईकल और जखाऊ को उन्नत किया जाएगा. द टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द ब्लू पोर्ट प्रोजेक्ट इज 500 करोड़ रुपीज. ब्लू पोर्ट परियोजना के लिए कुल निवेश लगभग 500 करोड़ रुपए है. एंड द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स. इस परियोजना में ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और वर्षा जल संचयन उपयोग उपाय शामिल हैं. Which of these statements, you have to tell us which of these statements are incorrect. Just read the question carefully. इनमें से कौन से statements incorrect हैं? Is it the first, the second or the third statement या तीनों ही सही हैं आपके हिसाब से? So the right answer here is the second statement is incorrect. Second statement क्यों incorrect है? Because जो total investment है इस स्कीम में वो है approximately 370 crore rupees. 369.8 है exactly. But to learn 370 crore rupees जो है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है. अब ये 3 स्टेटमेंट्स आप याद कर लीजिए. 3 पायलट हार्बर्स जो आपके इंडिया ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव है विद FAO, उसमें 3 पायलट हार्बर्स होंगे, अपग्रेड किए जाएंगे. The total investment is about 370 crore and there is energy efficient lighting and rainwater harvesting measures also included. Moving on to question 10. Which state government introduced the Anbu Karangal scheme to provide monthly financial aid to orphaned children in 2025? किस राज्य सरकार ने 2025 में अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अंबु करंगल योजना शुरू की? अंबु करंगल scheme. So you have to tell which state has started this scheme and the right answer is Tamil Nadu. Moving to question 11. Which Indian film has been selected as the official entry for the best international feature film category at 2026 Oscars? 2026 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म का चयन किया गया है? Which is the official entry for Oscars in the category of Best International Feature Film from India? And the answer is Homebound. Moving on to question 12. Which type of emissions from India's power sector recorded a drop recently, reflecting the impact of clean energy growth? हाल ही में भारत के विद्युत क्षेत्र से किस प्रकार के उत्सर्जन में गिरावट दर्ज की गई जो स्वच्छ ऊर्जा विकास के प्रभाव को दर्शाता है? इसमें से कौन सी गैसेस हैं जिसका एमिशन रेट कम हुआ है एंड इट शोज कि हमारी जो क्लीन एनर्जी ग्रोथ है वो एक अच्छे ट्रैक पर है. सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस है हमारे पावर सेक्टर से वो रिसेंटली ड्रॉप हुई हैं. Question number 13. Consider the following statements about India and Canada's trade relations. India and Canada agreed to start trade negotiations to strengthen economic ties. Both countries plan to collaborate in sectors like defense, critical minerals, and clean energy. They have merged their trade regulations into a single agreement. हिंदी में पढ़ लेते हैं. भारत और कनाडा के व्यापार संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. भारत और कनाडा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए. दोनों देश रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने अपने व्यापार नियमों को एक समझौते में मिला दिया है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ध्यान से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को. यहाँ ये नहीं दिया कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन है हाउ मेनी, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है.
ये हमें बताना है। बिफोर वी मूव ऑन टू द आंसर, थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर देखते हैं। इंडिया और कनाडा ने रिस्टार्ट कर लिए अपने ट्रेड नेगोशिएशंस, ये तो हम न्यूज में देख ही रहे हैं, सो दिस मस्ट बी करेक्ट। एंड साथ ही सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि बोथ द कंट्रीज आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट इन सेक्टर्स लाइक। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में कोलैबोरेट करने वाले हैं, उन्होंने कहा है लाइक, यानी कि और भी ऐसे सेक्टर्स होंगे विच इंक्लूड डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी। अब ये जो सेक्टर्स हैं ये कोई बहुत ही अतरंगे सेक्टर्स नहीं है, इन सेक्टर्स पे हमेशा ट्रेड रिलेटेड बातें तो होती ही हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज वेरी जनरल एंड सीम्स टू बी करेक्ट। सिर्फ जो लोचा है वो है थर्ड स्टेटमेंट का, दे हैव मर्ज्ड देयर ट्रेड रेगुलेशंस इनटू अ सिंगल अग्रीमेंट। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंडिया अगर किसी के साथ भी कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट करेगा, कोई बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट अगर इंडिया के साथ होगा तो वो आपको न्यूज में स्पेशली दिखाई देगा इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज रेगुलरली। सो द करेक्ट आंसर हियर इज टू स्टेटमेंट। जो शुरू की टू स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज as of now we have not entered into a trade agreement, but we are very much moving towards a comprehensive economic partnership agreement CEPA with Canada. Let's move to question 14. How many political parties were delisted by the ECI recently for failing to comply with election norms? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव मानदंडों का पालन न करने के कारण कितने राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया है? बेसिकली जो हमारी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज यानी कि लिस्ट कर रहे हैं, पहले ईसीआई उनको लिस्ट कर रहे हैं सो दैट हमें ये पता चले कि कौन सी ऐसी पार्टीज है जिन्होंने एक जमाने में ईसीआई के साथ अपना रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था बट लेटर ऑन या तो उन्होंने पिछले 6 सालों में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा या फिर उन्होंने जो इलेक्शन नॉर्म्स हैं उनके साथ कॉम्प्लायंस नहीं दिखाया। तो इन दो रीजंस की वजह से रिसेंटली ईसीआई ने 474 पार्टीज को डीलिस्ट कर दिया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 15, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द एशियन कैडेट कप 2025 इनॉग्रेटेड बाय इट्स चीफ मिनिस्टर? किस भारतीय राज्य ने एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी की जिसका उद्घाटन उसके मुख्यमंत्री ने किया? अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, एशियन कैडेट कप 2025 कहां पर इनॉग्रेट हुआ? एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 16, which organization has recently launched the Bima Sugam, a digital इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म इन इंडिया? हाल ही में किस संगठन ने भारत में डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म बीमा सुगम लॉन्च किया है? वैसे तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है बिकॉज अगर इंश्योरेंस है और ऑप्शंस में आपको ऑलरेडी IRDAI गिवन है तो आंसर यही होगा। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इंश्योरेंस रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च करेगी। Moving on to question 17, which state recently got India's first PM Mitra Park aimed at strengthening textile sector and generating employment? हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला PM मित्र पार्क मिला जिसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना और रोजगार सृजन करना है? PM मित्र पार्क in which state? The first PM मित्र park of which state has been recently announced? And the answer is Madhya Pradesh. Let's move on to question 18. Which Indian state became the first to issue identity cards for women self-help group members in 2025? कौन सा भारतीय राज्य 2025 में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया? जो विमेन SHGs हैं, आई होप यू ऑल नो व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHGs क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप्स ऑफ 10 to 15 या समटाइम्स 20 मेंबर्स जिसमें ये अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं। दे पूल देयर रिसोर्सेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पूल्ड रिसोर्सेज एज कोलेटरल ये बैंक से कलेक्टिव लोन ले लेते हैं, कलेक्टिव लोन ले लेते हैं जिसको चुकाने का, जिसको पे बैक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका टुगेदर होता है एज अ ग्रुप। सो रिसेंटली तमिलनाडु ने जो विमेन SHGs हैं, विमेन ओनली के जो ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड्स देना शुरू किया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 19. Which company received RBI approval to operate as a payment aggregator in September 2025?
सितंबर 2025 में किस कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? Which of these companies have received the payment aggregator license? And the answer is PhonePe. PhonePe previously भी हमने आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन था, उस पे देखा था, एंड अभी रिसेंटली न्यूज में है फॉर getting an approval to operate as a payment aggregator. Last question of the day is, in 2025, Oil India and RVUNL signed an agreement to develop 1.2 gigawatt renewable energy projects. Which of the following statements about this initiative is correct? इन सभी 4 स्टेटमेंट्स में से एक ही करेक्ट बताना है। 2025 में ऑयल इंडिया और RVUNL ने 1.2 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? The project includes only wind energy capacity. इस परियोजना में केवल पवन ऊर्जा क्षमता शामिल है। The projects are planned within Rajasthan's renewable energy park. ये परियोजनाएं राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के अंतर्गत नियोजित हैं। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज, यह विशेष रूप से पड़ोसी देशों को निर्यात के लिए है। एंड द जॉइंट वेंचर एक्सक्लूड्स एनी एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इस संयुक्त उद्यम में हरित हाइड्रोजन को किसी भी तरह की खोज शामिल नहीं है। So you have to guess which of the statement is correct. Now before I display the answer, let's again discuss कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने सर्कल भी कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे ये कहते हैं द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ओनली विंड एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि विंड एनर्जी के अलावा किसी भी क्षेत्र में इस एग्रीमेंट के अंडर काम नहीं किया जाएगा। जब यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और ऑयल इंडिया भी शामिल है, तो क्यों होगा ऐसा कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा सिर्फ विंड कैपेसिटी को लेकर? फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि ये राजस्थान के रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में प्लान किया गया है, तो हो सकता है ये फैक्चुअल चीज जो है, स्टेट का नाम जो है उसको इनकरेक्ट कर दिया हो। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जहां विंड पे रिस्ट्रिक्टेड है, ये तो हमें कंप्लीटली गलत दिखाई दे ही रहा है। दिस इज डाउटफुल, सो लेट्स कीप इट हियर। थर्ड स्टेटमेंट है एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्रीज, मतलब हम किसी भी और कंट्री को, चाहे वो हमें ट्रिपल दी अमाउंट ऑफर करें, हम भेजेंगे ही नहीं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया में भी हम उस एनर्जी को यूज नहीं करेंगे। क्या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो नहीं, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी अनलाइकली। एंड लास्ट स्टेटमेंट है कि द जॉइंट वेंचर एक्सक्लूड्स एनी एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो कंट्री है वो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर लगी हुई है। जब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, तो हम क्यों ऐसे प्रोजेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन तो हो ही नहीं सकती? तो अपेरेंटली 3 स्टेटमेंट्स हमें ऐसी मिल रही हैं जो कंप्लीटली गलत नजर आ रही हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट है, सो मोस्ट प्रोबेबली दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू कैन डिकोड सम ऑफ द क्वेश्चंस, जहां पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और कुछ स्टेटमेंट्स में क्लियरली कुछ अटपटा नजर आ रहा है जिसको हम स्ट्राइक आउट कर सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टडी एंड रिवाइज। स्टडी और रिवाइज नहीं करेंगे तो ये सब दिमाग भी नहीं चलेगा। जैसे कि फोर्थ स्टेटमेंट में जब हम गैस कर रहे हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन हमारा मिशन चल रहा है, तो अगर हमने स्टडी और रिवाइज नहीं किया और हमें ये पता ही नहीं है ये वाला फैक्ट, तो हम फोर्थ जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्राइक आउट कर ही नहीं पाएंगे। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, स्टडी रिविजन एज वेल एज techniques and tricks. So these were our 20 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ePDFs, ebooks, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.